A very good morning to one and all present over here. I, Mrs. Ankita Mehta, am going to talk about Introduction to Organizational Behavior. Definition of organizational behavior. Organizational behavior is a study of how individuals and group act within an organization. See, every individual and group would react differently to different situation. Individuals are extremely dynamic, they are very vulnerable. We do not know how they will react to any kind of an situation. But if we come to know, it will definitely lead to better organizational behavior. It helps in improving productivity and workplace relationship. It is very necessary to break the ice, maintain the relationship and help it grow. Even the best of the capable people are not able to see stability in any kind of an organization because they do not understand the concept of organizational behavior, and that is the major idea behind recording this topic. Example, Infosys uses behavioral data to improve employee satisfaction. Employee satisfaction is a key term to any kind of an organization. I may give all the facilities to my employee, but if I'm not able to understand why my employee is not satisfied, I will not be able to justify his work or he will not be able to be productive. That is the reason we need to study this lesson topic. Now let's look into the significance and importance of OB. OB is very important, and the first point is it enhances motivation and job satisfaction. See, motivation is always internal and external both, and a person can be internally motivated, or there are times when the person may need external motivation too. In case if we know how the people would react to any kind of an situation, it is easier to motivate that employee in the organization. Also, OB helps with job satisfaction. See, there are times when a company pays a lot of money or it is giving a lot of facilities to the employee, but still the employee is not satisfied. For some reason, there are times when the employee may expect a promotion, or there are times when the employee may seek appreciation, and that is the reason if we know the concept of OB, we can make sure that the employee is job satisfied. Second, it encourages better communication and leadership. Whenever I talk about behavior, I talk about communication. Once there is an informal kind of a relationship in the formal organization, things become easier and they are very easy to navigate also. And also with better communication, we may find better leaders. See, there are times when some organizations are very rigid, they are not at all flexible, the communication is not at very ease. At that moment of time, we are not able to identify the hidden potential. So in case if we study this subject in detail, we will be able to identify the hidden potential. Third, it helps manage workplace conflict and change. The only thing consistent in any organization is change. There may be change in the environment, there may be change in internal environment. There are times when company may go through any kind of a merger. There are times when a competitor may enter the market. At that moment of time, if I'm able to predict the behavior of my employee, make him secure, make him happy in whatever the situation of the company is, I am sure the employee would be loyal towards the company. Employee would be giving more than 100% to the company. That is the reason we study OB. Also, there are times when there is a conflict in an organization. Now, what do you mean by conflict? Conflict हमेशा झगड़ा नहीं होता है. कभी difference of idea होता है, कभी difference of opinion होता है. कभी कभी ऐसा होता है कि हम सेम प्रोजेक्ट पे काम करते हैं लेकिन हमारी सोच मिलती नहीं है. ऐसे टाइम पे कब हमें मैच्योरिटी दिखाना है, कब हमें अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखना है, कौन सी चीज़ ऑर्गेनाइजेशन के लिए बेटर है, कौन सी चीज़ों में हमें पर्सनल पर्सपेक्टिव नहीं लेना है, ये सारी की सारी चीज़ें वी स्टडी व्हेन वी नो द कॉन्सेप्ट ऑफ ओबी. ठीक है. एग्जाम्पल, टाटा ग्रुप्स इंक्लूसिव पॉलिसी बिल्ड एम्प्लॉय ट्रस्ट. एवरी ऑर्गेनाइजेशन इज वर्किंग कि कंज्यूमर्स उनके ऊपर ट्रस्ट करें. हर एक ऑर्गेनाइजेशन को पहले ये देखना है कि एम्प्लॉय उनके ऊपर ट्रस्ट करता है कि नहीं. बिफोर tapping the external environment, it is necessary to identify your internal environment, and that is the reason अगर हमने OB का significance जाना, हम अपने employee का trust gain कर पाएंगे, and exactly that is what Tata Group of companies is doing. Now let us study the next major concept that is said to be major models of OB. So now what do you mean by models of OB? Model यानी कि हर एक organization में
एक सिचुएशन होता है, वो जितनी भी टाइप के सिचुएशंस होने वाले हैं या हो सकते हैं वो हम मेजर मॉडल्स ऑफ ओबी में पढ़ेंगे। द फर्स्ट मॉडल ऑफ ओबी इज ऑटोक्रेटिक मॉडल। ऑटोक्रेटिक का मतलब ही है authority based model, where according to this model the only sole decision making is done by the boss. Okay, so the boss makes all the decision. The boss is the one who commands and the employee has to listen. So in this kind of an ideal situation, employee are not supposed to give their feedback. Employee has no role in decision making. Everything is dependent on the boss. And now why am I using the word boss? Because a typical leader will never be dominant. He would always take the employee together. लेकिन अगर मैं बात बॉस की करती हूँ ना, तो बॉस सिर्फ अपना ही मनाना चाहता है या बॉस सिर्फ अपने ही डिसीजन लागू करना चाहता है, तो ऐसा एक आइडियल काइंड ऑफ एन सिचुएशन में कैसा हो जाता है, प्रोडक्टिविटी कम हो जाती है, क्योंकि हमें वही सब चीजें करनी पड़ती है जो बॉस कहता है या फिर जो बॉस को सही लगता है। नाउ द सेकेंड मॉडल इज कस्टोडियल मॉडल। अच्छा, इट इज एन बेनिफिट बेस्ड मॉडल। अभी ये बेनिफिट बेस्ड मॉडल क्या होता है? अच्छा, आपके पेरेंट्स आपकी कस्टडी लेते हैं, ठीक है, तो आपको बहुत सारी चीजें प्रोवाइड करते हैं, आपका एजुकेशन देते हैं, आपके क्लोथ्स देखते हैं, आपके एंटरटेनमेंट के सारे खर्चे उठाते हैं। वैसे ही जब आपकी ऑर्गेनाइजेशन आपकी कस्टडी अपने पास लेती है एंड आपको सारे बेनिफिट्स दे देती है, तो उस चीज को हम क्या बोलते हैं? कस्टोडियल मॉडल बोलते हैं, ठीक है। नाउ इन दैट कस्टोडियल मॉडल, हियर इट इज बेसिकली अबाउट बेनिफिट्स। एम्प्लॉय ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर बहुत ज्यादा डिपेंडेंट हो जाता है, अनलाइक ऑटोक्रेटिक मॉडल जहाँ एम्प्लॉय बॉस के ऊपर बहुत ज्यादा डिपेंडेंट होता है। कस्टोडियल मॉडल में एम्प्लॉय ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर बहुत ज्यादा डिपेंडेंट हो जाता है एंड ऑर्गेनाइजेशन भी एम्प्लॉय के साथ इसके लिए अच्छे से डील कर पाती है, क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन उसको बहुत सारा बेनिफिट्स देती है, ठीक है। सो इट इज एंड गिव एंड टेक काइंड ऑफ एन रिलेशनशिप। थर्ड इज सपोर्टिव मॉडल। नाउ व्हाट हैपेंस इन सपोर्टिव इज द ऑर्गेनाइजेशन एंड द लीडर्स आर जस्ट सपोर्टिंग द यंग माइंड्स एंड द यंग माइंड्स आर बेसिकली टेकिंग द टास्क टू द अनदर लेवल। यानी कि एम्प्लॉयज को लीडर्स बनाया जाता है, मैनेजमेंट उनको सपोर्ट करता है एंड एम्प्लॉयज को बहुत ज्यादा मोटिवेशन मिलता है। अब इसमें एडवांटेज क्या होता है? एम्प्लॉयज को अपने पोटेंशियल का पता चलता है, वो ना ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर डिपेंडेंट होता है ना ही बॉस के ऊपर डिपेंडेंट होता है, बल्कि उसको ऐसा लगता है कि मेरे में भी कुछ खूबी है जिसकी वजह से मैं आगे बढ़ सकता हूँ। सो बेसिकली व्हेनेवर आई टॉक अबाउट सपोर्टिव मॉडल, एवरीबडी इन द ऑर्गेनाइजेशन इज सपोर्टिंग द एम्प्लॉय सो दैट ही कैन क्लाइम द लैडर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन वेरी इफेक्टिवली। सो दैट इज व्हाट आई से इज सपोर्टिव मॉडल। एंड फोर्थ इज कोलेजियल मॉडल। कोलेजियल यानी कि टीम वर्क एंड पार्टनरशिप। ओके, अब मैम सपोर्टिव मॉडल एंड कोलेजियल मॉडल के बीच में क्या फर्क है? द मेजर आइडिया इज कोलेजियल मॉडल में इट इज मोर अबाउट टीम वर्क, इट इज मोर अबाउट इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वर्क, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ राइट्स। यानी कि हर कोई ब्रेनस्टॉर्म करता है, साथ में बैठ के आइडियाज डिस्कस करता है, पार्टनरशिप में काम करता है, कोई भी बड़ा नहीं होता, कोई भी छोटा नहीं होता, एवरीबडी हैज एन इक्वल एंड इम्पोर्टेंट रोल टू प्ले, ठीक है। तो सपोर्टिव में it is more about one employee taking the leadership role and other employees following it, ठीक है। बट कोलेजियल में पता है कैसा होता है कि एवरीबडी हैज इक्वल चांसेस ऑफ ग्रोइंग, एवरीबडी कैन गिव देयर आइडियाज एंड एवरीबडी गो फॉरवर्ड इन ऑर्गेनाइजेशन। सो दैट इज सेड टू बी कोलेजियल मॉडल, ठीक है। अब मैं कुछ एग्जांपल्स बताती हूँ। जैसे LIC है तो वो कस्टोडियल मॉडल यूज करती है, HDFC बैंक है वो सपोर्टिव मॉडल यूज करती है, विप्रो एस एन कंपनी कोलेजियल मॉडल यूज करती है। यानी कि हर कंपनी अपने हायरार्की के हिसाब से इनमें से कोई भी मॉडल्स सिलेक्ट करती। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द की कंपोनेंट्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर। अगर मैं ओबी पढ़ती हूँ तो मुझे और कौन सी चीजें पढ़ने की जरूरत है? फर्स्ट, पीपल। द मोस्ट डिफिकल्ट पार्ट ऑफ अंडरस्टैंडिंग पीपल इज पीपल आर वेरी वेरी डायनामिक। हर एक इंसान हर एक सिचुएशन के हिसाब से अलग व्यवहार करता है, अलग रिएक्शन देता है। हमें नहीं पता कि आज के सिचुएशन में कौन सा एम्प्लॉय कौन सा रिएक्शन देगा। इसके लिए इट इज़ वेरी नेसेसरी टू अंडरस्टैंड पीपल, बी एम्पैथेटिक टुवर्ड्स देम। उनको समझने की ज़रूरत है क्योंकि यही वो लोग हैं जो आपका ऑर्गेनाइजेशन बनाते हैं। सेकेंड, मुझे ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर को देखने की ज़रूरत है। मेरा स्ट्रक्चर फ्लैट स्ट्रक्चर है,
टॉल स्ट्रक्चर है, अगर मुझे कुछ परमिशन चाहिए तो मुझे बहुत ज़्यादा डेजिग्नेशंस को क्रॉस करना पड़ता है क्या, अगर मेरा फ्लैट स्ट्रक्चर है तो क्या मुझे बहुत कम लोगों से परमिशन लेनी पड़ती है, क्या काम जल्दी हो जाता है। तो अगर मैं ओबी स्टडी करने की कोशिश करूँ तो मैं स्ट्रक्चर भी स्टडी करने की कोशिश करूँगी। जितना ज़्यादा कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर होगा उतना डिफिकल्ट ओबी इम्प्लीमेंटेशन के लिए रहेगा। थर्ड इज टेक्नोलॉजी, वेरी वेरी नेसेसरी। Nowadays, जब से AI आया है, चैट GPT आया है, suddenly people have one insecurity and one fear. Will AI take my job? Will technology take away my job? Now one needs to understand one thing. Technology and people go hand in hand. Technology people का काम नहीं कर सकता, पीपल टेक्नोलॉजी का काम नहीं कर सकते। अगर हम ये दोनों को सिंक्रोनाइज करेंगे तभी हम एफिशिएंट ओबी प्रैक्टिसेस को इम्प्लीमेंट कर पाएंगे। सो दैट इज द रीजन वी नीड टू अंडरस्टैंड ओबी। द थर्ड इज एनवायरमेंट। वी ऑल्सो नीड टू अंडरस्टैंड द एनवायरमेंट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। सी देयर आर सम ऑर्गेनाइजेशन जो हमें ग्रो करने के लिए मजबूर कर देती है, बट देर आर सम ऑर्गेनाइजेशन जहाँ पे कुछ कल्चर्स होते हैं या जहाँ पे कुछ लोग होते हैं जो हमें ग्रो नहीं करने देते। इवन विद द बेस्ट ऑफ द कैपेबिलिटीज, बेस्ट ऑफ द बिहेवियर्स एंड बेस्ट ऑफ द डेजिग्नेशंस, देर आर टाइम्स व्हेन वी फील स्टक इन दैट ऑर्गेनाइजेशन बिकॉज पीपल आर नॉट सपोर्टिंग, द एनवायरमेंट इज नॉट सपोर्टिंग एंड इट इज़ नॉट वेरी पॉजिटिव। इसके लिए अगर मैं ओबी पढ़ती हूँ तो मुझे ऑर्गेनाइजेशन का एनवायरमेंट पढ़ने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। सो दिस आर द 4 थिंग्स दैट आई नीड टू स्टडी व्हेन आई टॉक अबाउट ऑर्गेनाइजेशन behavior. Example, Reliance integrates people and tech for higher efficiency. Now Reliance is such a big visionary organization. यहाँ पे उन्होंने बहुत अच्छा स्टेटमेंट मारा है। उन्होंने क्या बोला, अगर रिलायंस को ग्रो करना है तो उसने क्या किया, टेक्नोलॉजी एंड पीपल को ज्वाइन किया है या फिर उनको इंटीग्रेट किया है फॉर बेटर एंड हायर एफिशिएंसी सो दैट द एरर्स आर लेस, बेटर डिसीजन मेकिंग एंड बेटर प्रोडक्टिविटी। नाउ लेट अस टॉक अबाउट एप्लीकेशंस ऑफ ओबी इन रियल लाइफ। मैम टेक्स्ट बुक में तो हम ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर पढ़ते हैं, पर क्या यही ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर मेरे सही लाइफ में काम आता है? डेफिनेटली काम आता है। द फर्स्ट इज कॉन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन। सी देयर आर वेरियस मेथड्स टू सॉल्व योर कॉन्फ्लिक्ट। आपके झगड़े सॉल्व करने के लिए बहुत सारे मेथड्स हैं। या आप किसी को अवॉइड कर सकते हो, या आप कॉम्प्रोमाइज कर सकते हो, या आप किसी को फोर्स कर सकते हो किसी को, या आप किसी भी कॉन्फ्लिक्ट में डोमिनेट कर सकते हो। लेकिन कौन सा सॉल्यूशन कौन से कॉन्फ्लिक्ट में काम आता है ये जानना जरूरी है। इसके लिए हम ओबी में सबसे पहले चीज देखते हैं कि कॉन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन कैसे होता है। नाउ अंडरस्टैंड वन थिंग, कॉन्फ्लिक्ट तो हर छोटी चीज में आ सकता है, बट उसको बड़ा ना होने देना एंड उसको कामली सॉल्व करना, दैट इज ऑल्सो द मेजर पार्ट ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर। सेकेंड, लीडरशिप डेवलपमेंट। देयर इज अ लॉट ऑफ पोटेंशियल केपेबल पीपल अराउंड यू एंड इन केस इफ यू अंडरस्टैंड देयर बिहेवियर्स एंड यू अंडरस्टैंड ओबी, आप एक नए लीडर्स को डेफिनेटली डेवलप कर सकते हो। आप उनको अपॉर्चुनिटीज दे सकते हो, आप उनको चांस दे सकते हो एंड वो आपके ऑर्गेनाइजेशन के लिए वंडर्स कर सकते हैं। थर्ड इज ऑर्गेनाइजेशनल चेंज। इफ देयर इज सम change in hierarchy, change in CEO, change in management, change in products, probably a new competitor coming in, तो अगर हमें पता है कि हमें ओबी कैसे अप्लाई करना है, हमारे एम्प्लॉयज हमेशा सेफ फील करेंगे। बट इन केस अगर हमें नहीं पता कि हमें कौन सा बिहेवियर अप्लाई करना है, देर आर टाइम्स व्हेन हमारे एम्प्लॉयज़ को इनसिक्योरिटी हो सकती है। उनको आ सकता है कि मैं जॉब चेंज कर दूं, या उन्हें ऐसा लग सकता है कि उनका शायद जॉब रोल खत्म ही हो गया हो। तो एट दैट मोमेंट ऑफ टाइम, हाउ टू सॉल्व द इनसिक्योरिटीज ऑफ माई एम्प्लॉय इज वॉट आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू। एंड द लास्ट इज टीम कम्युनिकेशन। एवरीबडी कैन डू इनफॉर्मल कम्युनिकेशन, everybody can talk at an individual level, but very difficult to talk at an team level. आप जब टीम में बात करते हो ना, आप सिर्फ टीम ऑब्जेक्टिव्स के बारे में बात करते हो, आप सिर्फ टीम के ग्रोथ के बारे में बात करते हो, आप सिर्फ स्ट्रैटेजिक कम्युनिकेशन करते हो। एंड ऐसे कम्युनिकेशन के लिए आपके पास वो स्किल्स होना चाहिए। दैट इज़ द मेजर रीज़न आपको ओबी हेल्प करता है। तो ओबी आपके कॉन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन में काम आ सकता है, लीडरशिप डेवलपमेंट के लिए काम आ सकता है, ऑर्गेनाइजेशनल चेंज होता है कुछ, उसमें काम आ सकता है, एंड टीम कम्युनिकेशन में हेल्प कर सकता है। एग्जाम्पल, महिंद्रा एंड महिंद्रा applies OB to train leaders and manage change. Now change is consistent. We cannot resist change. But what we can do is we can train our employees towards becoming loyal, कि irrespective कोई भी situation आए,
क्राइसिस आए, बुरा वक्त आया ऑर्गेनाइजेशन में, आई जस्ट हैव टू मेक श्योर दैट माई एम्प्लॉयज आर वेरी लॉयल टूवर्ड्स मी. सो दैट इज द मेजर आइडिया. सी इफ छोटी से छोटी बात पे अगर एम्प्लॉयज ने रेजिग्नेशन देना चालू कर दिया या एट्रिशन रेट बहुत ज्यादा बढ़ गया, तो इट मे नॉट बी वेरी बेनिफिशियल फॉर द ऑर्गेनाइजेशन. सो दैट इज द रीजन वी हैव टू मेक श्योर कि हमारा एम्प्लॉय एक हैप्पी एम्प्लॉय रहे. नाउ लेट अस कंक्लूड दिस पीपीटी. सो द फर्स्ट पॉइंटर टू द कंक्लूजन इज OB creates a productive and respectful work culture. Respect is the key word. There are times when we may not like somebody or we may not want to talk to somebody, but not forgetting the manners and being respectful and just being cordial is the key. So that is what we learned from organizational behavior. Second, it helps organization adapt and grow. Adaptation is the key because consistency is not the key. कंसिस्टेंट तो हम रहेंगे नहीं, तो हमें एडेप्ट करना आना चाहिए. इफ वी कैन नॉट एडेप्ट अकॉर्डिंग टू द कॉम्पिटिशन, थिंग्स विल बिकम डिफिकल्ट फॉर द ऑर्गेनाइजेशन. वी विल नीड टू एडेप्ट अकॉर्डिंग टू द लेटेस्ट टेक्नोलॉजी, अकॉर्डिंग टू द डिमांड्स ऑफ द एम्प्लॉय, अकॉर्डिंग टू द नीड्स ऑफ द मार्केट, अकॉर्डिंग टू द एक्सपेक्टेशंस ऑफ द कस्टमर्स. सो दैट इज द रीजन हमें क्या करना चाहिए. इट हेल्प्स ऑर्गेनाइजेशन टू एडेप्ट एंड grow. Last but not the least, happy employees lead to successful organization. अभी तक हम लोग ने मार्केटिंग में पढ़ा था, happy customers always results to successful organization. But in OB we learn is happy employees leads to successful organization. If your employee is happy, they will keep your customers happy, and if your customers are happy, they'll keep your organization happy. So start internally and then go out and reach the customers. That will bring a major change. Thank you so much.